We are equally honored to welcome the incredible leadership with us today. Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat. Shri Ashwini Vaishnav, Honorable Union Minister, Meiti. Shri Harsh Bhai Sanghvi, Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat. Shri Vellayan Subbiah, Chairman of CG Power. Shri Jagdish Vishwakarma, Honorable MLA. Shri Arjun Bhai Modwaria, Honorable Minister of Science and Technology, Gujarat. Ms. Malini Narayan Murthy, Global VP and President, Renaissance. Mr. Girish Chaturvedi, Chairman, CG SEMI. Esteemed dignitaries, senior government officials, invited guests, friends from media, and CG SEMI family, we also welcome you. Ladies and gentlemen, let's welcome our honorable dignitaries to a dome filled with deep gratitude, youthful energy, and the spirit of a self-reliant India. One more time with a huge round of applause, let's welcome everyone. Thank you, everyone. A new chapter begins. A new power is born, and a new confidence shines today. To honor the vision that made this day a reality, I request the Chairman of CG Power, Shri Vellayan Subbiah, to present a special token of our deepest respect to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Thank you very much, Prime Minister, sir, for your unshakable faith in India's potential. Thank you. What began as a single seed of ambition has today blossomed into a roaring commercial reality. By combining global expertise with the incredible dedication of our young engineers, we prove that when India dreams, we build for entire world. To formally open this historic afternoon and share the significant journey of bringing this global semiconductor hub to life, I have the pleasure of inviting the visionary leader behind this massive undertaking. Please welcome the Chairman of CG Power, Shri Vellayan Subbiah, for the welcome address and opening remarks. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Patel ji, Honorable Union Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Deputy Chief Minister Sanghvi ji, and distinguished guests, Namaskaram. Welcome. Thank you for joining us as we celebrate the commencement of commercial production at our OSAT facility here in Sanand. It's an important milestone for CG and a big step forward in India's semiconductor journey. In semiconductors, under the joint aegis of our Prime Minister Modi ji and Honorable Minister Vaishnav ji, an immaculately clear vision has been defined for India. The responsibility now lies with industry to match that vision with equal commitment. Nishan chuk maaf, nati maaf, nichu nishan. We certainly don't want to set our sights low, sir. As Tamilians are learning Gujarati by the day. Today we celebrate not just the first commercial shipment from the facility, but India's emerging role in the global semiconductor supply chain. It is deeply symbolic that our first shipment is going to global customers of Renesas, our Japanese partner. After all, Japan has long been synonymous with precision, discipline, and quality. As people in Gujarat often say, "Kaam bole che." Today, this first shipment speaks louder than words. Our partner Renesas taught us what being truly world-class means. Their qualification standards were tough, very tough. By meeting those, we earn not only the trust of our customers, but also confidence in what advanced Indian manufacturing is capable of achieving. Getting to this stage took the blood, sweat, and tears of a fantastic team of people. Over 75 of our colleagues moved to Gujarat from the Philippines, Korea, United States, and Malaysia. They came here not merely to build a factory, but to help build India's capability. It is our responsibility to welcome them, to thank them for the efforts they put in every day. Thank you. To our technicians from villages and towns across the country who poured their hearts into this effort, it is an honor and privilege to see your dedication.
and to our strategy team who helped transform this idea into reality, thank you. To all our suppliers, partners, and customers, thank you for your confidence in us. The manner in which you have all worked together reaffirms my faith that Ekta Ma Shakti Che. We have had the privilege of being born in this great land at a time when this land is rising again. It is our responsibility to build this great nation. Like John F. Kennedy said, ask not what the country can do for you, ask what you can do for the country. Now, when AI is threatening job creation and may well create job destruction, we need to think of what is the right solution for India. That solution is advanced manufacturing. There are 10 significant sectors where India can establish itself as a relevant advanced manufacturing nation. When we study how nations have grown in the field of manufacturing, the most relevant models that we think of are Japan, Korea, and China. We have the opportunity to learn from these models, but we must carve our own path. India's path must be based on its strengths. Our biggest strength is our spirituality. Historically, spirituality was intertwined with our daily lives in this country. Through the invasions, we were made to lose this connect with this great power. It is time we resurrected our connect with spirituality. It is time we realized that it is a great ability, a great source of Shakti. This Shakti can help us become a better people, help us build a better country. There is another important element in the path that India chooses, trust. We need to become and be seen as a trusted partner in the global semiconductor ecosystem. This is a conscious path that our Prime Minister is leading us on. We need to build lasting partnerships with companies across the semiconductor ecosystem, with nations and with institutions across the world. China grew because the industrialists were aligned with national objectives. It will take at least 100 large industrialists to commit themselves to the building of this nation. I am happy to make this commitment. In the sectors that we understand, semiconductors, power, clean transportation, and clean energy, we are happy to commit to building India's capability as an advanced manufacturing leader. Long before globalization became a word, India globalized. We built, innovated, and traded. From Nagapattinam and Mamallapuram in Tamil Nadu to Lothal and Dwarka in Gujarat. In more recent decades, we have become one of the world's greatest service economies. It is now time to bring this transformation to advanced manufacturing. India needs hundreds of industrialists to stand up, thousands of engineers to step forward, and millions of skilled hands to commit to the building of this great nation. After all, Bharat ki udaan mein hamari udaan hai. Namaskaram. Jai Hind. Thank you, Mr. Vilayan Subbiah, for your address. नीति जब संकल्प बनती है तब प्रगति धरातल पर उतरती है. To share how this facility positions India as a premier, full-service global OSAT provider, please put your hands together for our Honorable Union Minister, Shri Ashwini Vaishnav ji. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के कई सेक्टर्स में ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि आने वाले कई सदियों तक देश की पहचान दुनिया में बनाएंगे, जैसा ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इस तरह के कई स्टेप्स लेने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, जिनका एग्जीक्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज ये प्लांट आज हम जो देख रहे हैं 27 महीने में खड़ा हुआ है. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी. हमारे बहुत ही ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई सांघवी जी, जिनको छोटा सा मैसेज डालें 2-3 मिनट के अंदर अंदर कॉल आता है और उसके बाद में 7-8 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई. गुजरात प्रदेश के प्रमुख श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, जो कई बार हम लोग साथ काम किए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है. सीजी सेमाई के विलायन जी, उपस्थित गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण
और कई धारासभ्य जो यहाँ उपस्थित है और विशेषकर देश के कोने कोने से आके यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले बच्चों, नौजवानों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप जब रियल चिप बना रहे हो तो जो कभी किसी दूसरे तरह की चिप बनाने वाले थे उनकी भी कभी कभी याद कर लेना। याद आया? साथियों, आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। आज जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है। और ये ट्रस्ट है, ये भारत की जो आईपी राइट्स को रिस्पेक्ट करने की ट्रस्ट है और भारत ने जो काम करके दिखाया है, ये बनेगा विकसित भारत की बहुत बड़ी फाउंडेशन। गत मार्च 2024 में इस प्लांट का भूमि पूजन हुआ था और आज जुलाई 2026 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन, यानी 27 महीनों में भूमि पूजन से कॉमर्शियल प्रोडक्शन। और विशेषकर करीब देश के कई राज्यों से आई हुई बेटियां वो इस प्लांट में काम कर रही है, वो इस प्लांट में ऑपरेटर है। बेटियों, आप सबके लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। कई बेटियां झारखंड से आई हैं, कई छत्तीसगढ़ से है, कई मध्य प्रदेश से है, बिहार से है, सुदूर जम्मू कश्मीर से भी कुछ भाई और कुछ बेटियां आई हैं, गुजरात से है, देश के कोने कोने से। अभी तो एक बेटी केरल से भी थी, केरल की बेटी, तो कई जगह से आए हैं। ये एक क्षमता है देश की, पूरा देश एक होके जब संकल्प करता है तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जैसी कठिन इंडस्ट्री भी भारत में तैयार हो पाती है। भारत के लिए गौरव की बात है कि जो बेटियां गांव से पहली बार निकली वो ट्रेनिंग करने गई मलेशिया, और अब जो इकोसिस्टम बन रहा है, आने वाले प्लांट्स में भारत में ही ट्रेनिंग भी दे पाएंगे, नए नौजवानों को तैयार भी कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस प्लांट में बनने वाली चिप्स कारों में, स्कूटर्स में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, इन सब में लगेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि भारत में बनी चिप्स, इस प्लांट में बनी चिप्स अब जापान, अमेरिका और यूरोप भी जाएगी। भारत की तकनीक दुनिया भर में अपना नाम कमाएगी और इस प्रयास को सफल करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सब एक बार खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। ये संभव नहीं था कभी, ये संभव हो पाया क्योंकि एक बड़ा संकल्प हमारे नेतृत्व का है, जिन्होंने एक भागीरथी संकल्प लिया कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लाएंगे, और आज ये सच्चाई में परिवर्तित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने राष्ट्र के लिए इतनी बड़ी नींव तैयार की है। इन 4 वर्षों से कम समय में आज 12 यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 3 यूनिट में कॉमर्शियल प्रोडक्शन, 24 डीप टेक डिज़ाइन के स्टार्टअप्स तैयार हुए और 70,000 नौजवानों को डिज़ाइन में ट्रेनिंग मिली है। 315 यूनिवर्सिटीज़ में आज डिज़ाइन के कोर्स चल रहे हैं और आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर से देश की नई पहचान बन रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आज 13 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बन गई है, जिसमें 25 लाख लोगों को रोजगार उससे जुड़ा हुआ है। आज के इस इनॉग्रेशन के बाद आने वाले कुछ ही महीनों में 2 और प्लांट सेमीकंडक्टर के इनॉग्रेट होंगे। तो स्टे ट्यून्ड, कंट्री इज मूविंग वेरी वेरी फास्ट। यानी 2026 समाप्त होते होते भारत में 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में प्रोडक्शन आरंभ हो जाएगा और धोलेरा में जो भारत की पहली फैब बन रही है
उसका भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को। आप लगातार फॉलोअप करते हैं, लगातार जो भी स्टेप, जो भी दिक्कत आती है आप इसको सॉल्व करते हैं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत होने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है और स्वदेशी गौरव में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, सीजी टीम का अभिनंदन, गुजरात टीम का अभिनंदन और टीम भारत का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। कहते हैं कि विकास की सबसे खूबसूरत भाषा वो है जो शोर से नहीं बल्कि शांत और ठोस फैसलों से बोली जाती है। गुजरात की इस पावन धरा पर तकनीक का यह जो नया सवेरा हुआ है, उसके पीछे एक ऐसा ही सरल, सहज और कर्मठ नेतृत्व काम कर रहा है। पूरे आदर और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूं गुजरात के जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को उनके उद्बोधन के लिए। सीजी सेमी के कॉमर्शियल प्रोडक्शन और ओशैट सुविधा के प्रारंभ अवसर पर हमारे साथ मंचों पर उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, मेरे साथी मंत्री श्री अर्जुन भाई मोडवाडिया, सीजी पावर के चेयरमैन श्री विलायन सुबैया जी, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के ग्लोबल वीपी एंड प्रेसिडेंट मालिनी नारायण मूर्ति जी, सीजी सेमी के चेयरमैन श्री गिरीश चतुर्वेदी जी, आमंत्रित सभी अतिथिगण, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 12 वर्ष के सुशासन का अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है और विकसित भारत की दिशा में हम उनके नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से निकलकर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आर्थिक विकास की इस यात्रा में मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्ट पावर और टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में नए आयाम स्थापित हुए हैं और अनेक नए क्षेत्रों के द्वार खुले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में यह डिकेड भारत के लिए डेकेड हैं। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में भी प्रधानमंत्री जी के विजन से भारत का प्रभाव बढ़ा है। आज का यह अवसर भी प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। केवल 5 महीने की अवधि में ही आज साणंद में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यह तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट के कॉमर्शियल प्रोडक्शन का प्रारंभ होने जा रहा है। सीजी सेमी का यह प्लांट भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाएगा और देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा देगा। साथ ही 5000 से अधिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी सहयोग देगा। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन संकट में थी, तब से मोदी साहब ने भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र का ग्लोबल हब बनाने का दृढ़ संकल्प किया था। जो कहा वह करके दिखाने का यह प्रधानमंत्री जी का कार्य मंत्र है। इसके परिणाम स्वरूप भारत विश्व की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया में अग्रणी बनाने के लिए दिए हर संकल्प को साकार करने में गुजरात हमेशा सबसे आगे रहा है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई के विशिष्ट विजन से देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी धौलेरा और साणंद में वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मिशन से इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, डिजाइन और इनोवेशन के लिए एक गतिशील और सुदृढ़ सिस्टम स्थापित हुआ है। गुजरात को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में फ्यूचर रेडी और अग्रणी हम बनाने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमने 2022 में देश में पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी
घोषित की थी। इतना ही नहीं, राज्य में सेमीकंडक्टर फैब, असेंबली टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग तथा चिप डिजाइन इकोसिस्टम के विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प किया है। आत्मनिर्भरता इस संकल्प को पूरा करने का मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह आत्मनिर्भरता अब ग्लोबल चैलेंजेस का भी सॉल्यूशन बन गया है। आइए हम सभी प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को आत्मसात करके विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण में आगे बढ़े। गुजरात में यह प्लांट शुरू करने के लिए सीजी सेमिकॉन को बहुत बहुत बधाई देते हुए और राज्य सरकार संपूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इन प्रेरक शब्दों और गुजरात को लगातार प्रगति की राह पर बनाए रखने के लिए। Ladies and gentlemen, for over 125 years, the Murugappa Group hasn't just built businesses, they have built national capability. From powering our mobility and railway safety to driving financial inclusion, they have always answered one vital question: what does India need next? Today, that story completes a circle no one saw coming. The company that powered India's yesterday now builds the silicon of India's tomorrow. क्योंकि भारत की उड़ान हमारी पहचान. With immense pride, I invite our Honorable Prime Minister, Sir Shri Narendra Modi ji, to press the remote button and dedicate to the nation and declare to the world the CG Semi G1 facility, CG Power's commercial semiconductor manufacturing plant. बहुत बहुत अभिनंदन. From Gujarat to India, from India to the world, from a promise to a plant, from a dream to a chip. This is not just a facility, this is a declaration. The CG Semi G1 facility is now open. Let's have a look at the audio-visual film on the facility. For decades, semiconductor has been the invisible engine of the modern world. As digital technologies continue to transform economies and industries, semiconductors have become a critical enabler of innovation, advanced manufacturing, and economic growth. India had the talent and the ambition. What we needed was the vision and commitment to build at scale. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the India Semiconductor Mission was launched in 2021. Today, that vision is becoming reality as India builds world-class semiconductor manufacturing capabilities, resilient supply chains, and a globally competitive ecosystem. The vision became policy. Policy translated into investment. Investment drove execution, and execution created capability. One of the initial projects approved by the government was CG Semi. We transformed an empty stretch of land in Sanand into a landmark of India's semiconductor ambition. In less than a year, we built one of India's fastest first-generation OSAT facilities with a capacity of over 300 million units. Rising next is a facility spanning over 1 million square feet with the capacity to produce 4 billion units. Built not just for today, but for generations to come. From now on, we will design for Bharat. We will make for Bharat. We will build Bharat. Thanks to our technology partners, the talent that showed up every single day.
Together, they brought us to this historic moment of the launch of commercial production. The facility strengthens India's semiconductor ecosystem, generates employment, enhances technology capabilities, and deepens India's integration with global semiconductor value chains. वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी. Our journey began late, but nothing can stop us now. Jai Hind. Ladies and gentlemen, the story we just witnessed on screen is already a living reality on the ground. Today, we don't just celebrate a vision, we celebrate immediate execution. Right here, right now, India's commercial semiconductor journey officially begins. In the gracious presence of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, I invite the Chairman of CG Power, Shri Vilayan Subbiah, and the leadership of Renesas, Ms. Malini Narayan Murthy, Global VP, and President to step forward for the handover of our very first commercial shipment. Let our applause travel from this hall to every home, to every hand holding a phone, to every corner of the globe, watching India rise. A moment of extremely high pride. Thank you, Prime Minister, sir, for your unshakable faith in India's potential for building nation chip to chip. देवी और सज्जनों, जब विचार एक संकल्प बनता है तो इतिहास की रचना होती है. आज पूरी दुनिया जिस नए भारत के सामर्थ्य को देख रही है वह किसी जादू से नहीं बल्कि एक अदम्य इच्छा शक्ति से मुमकिन हुआ है. यह साक्षात प्रमाण है हमारे आत्मनिर्भरता के आत्मविश्वास का और इस महासंकल्प को जमीन पर उतारकर वैश्विक पटल पर भारत का परचम लहराने वाले नए भारत के प्रणेता, हमारे मार्गदर्शक और यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं हमारे बीच मंच पर उपस्थित है. तो आइए पूरे आदर, गहरे सम्मान और इस सभागार को तालियों की एक प्रचंड गूंज से गुंजायमान करते हुए मैं बहुत ही मान और गौरव के साथ मंच समर्पित करती हूं परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके विशेष संबोधन के लिए. केम छो बधा? गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव, ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, सीजी पावर के चेयरमैन विलायन सुबैया जी, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रेसिडेंट मालिनी जी, सीजी सेमी के चेयरमैन गिरीश जी, यहां मौजूद अन्य सभी इंडस्ट्री लीडर्स, देवी और सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है. 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे. हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी
चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहां टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है। शिलान्यास से प्रोडक्शन तक का ये सफर निश्चित रूप से अनेक साथियों के परिश्रम का परिणाम है। सोबैया जी जैसे लोगों के नेतृत्व का परिणाम है। अभी मंच पर आने से पहले मुझे इस प्रोजेक्ट से जुड़े अनेक साथियों से बातचीत करने का भी मौका मिला। एक प्रकार से लगता है कि इस परिसर में एक मिनी इंडिया बसता है। हर भाषा के, हर पहनाव के, हर खान पान के लोग यहाँ हैं। यानी कि अलग सा माहौल मैंने अनुभव किया। एग्जीबिशन विजिट के दौरान भी मैंने कई बेटे बेटियों से बातचीत की और एक बात जिसको मैं बड़े गर्व से उल्लेख करना चाहूंगा, इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल। जिस आत्मविश्वास से वो बातें कर रहे थे, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जो उनका विश्वास था कहने का, कम से कम मैं तो इंप्रेस हो गया। साथियों, सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। 20 करोड़। आपको लगता होगा कि मोदी जी ने गलती कर दी, 20 लाख को 20 करोड़ बोल दिया, इधर ताली बजाने में देर हो गई। 20 करोड़। और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है। यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे। ये भरोसा इस बात का भी है कि सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम तेज गति पकड़ रहा है। स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक और अब चिप बाय चिप।
मैं सीजी सेमी की पूरी टीम को, राज्य सरकार और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे जरा इस बात का थोड़ा आनंद ज्यादा है। आपको लगता होगा कि ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी को जरा आनंद ज्यादा है। इसका कारण ये है कि 20 साल पहले, शायद उससे भी पहले, मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सारी योजना बनाई। गांधीनगर और प्रांतिज के पास 350-400 एकड़ जमीन तय कर ली। कुछ कंपनियों से बातचीत भी की। भारत सरकार भी उस समय बड़े बड़े बयान दे रही थी, तो कुछ कंपनियां बातचीत करने के लिए आती भी थी। लेकिन पता नहीं भारत सरकार को उस समय क्या हो गया कि उनके पैरों में बेड़ियां लग गई और बात आगे नहीं चली। आज जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा 20-22 साल पुराना जो सपना, और उस समय देश में इन विषयों की चर्चा कोई करता नहीं था, और मैं जी भी करता था तो यहां मीडिया वाले मेरी मजाक उड़ाते थे। उस समय नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हो रहा है तो सर्वाधिक खुशी मैं अपने भीतर से अनुभव कर रहा हूं। आप देखिए, अभी कुछ हफ्ते पहले खबर आई, मुझे हैरानी है कि मीडिया ने जितना उस पर ध्यान जाना चाहिए गया नहीं। भारत में बना हुआ C295 विमान बड़ौदा में बना और हवा में उड़ान भी भरी। एक जमाना था साइकिल बनाने वाला भी कोई आ जाए ना तो हम मिठाई बांटते थे। दोस्तों, आजकल हवाई जहाज बनाने वाले आ रहे हैं। साथियों, आप सभी जानकार लोग यहां बैठे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे युवा साथी भी यहां मौजूद है। हम अगर दुनिया के औद्योगिक इतिहास को देखेंगे तो एक बात स्पष्ट होती है, दुनिया की कोई भी ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर किसी एक अकेली फैक्ट्री से नहीं बनी। इंडस्ट्रियल पावर की नींव क्लस्टर्स होते हैं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली, ताइवान का शिंचू साइंस पार्क, जापान का सिलिकॉन आइलैंड, सुकुबा साइंस सिटी, ये सब क्लस्टर के महत्व को दर्शाते हैं। आज साणंद भी उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कुछ ही महीनों में यहां माइक्रोन, केन्यास और सीजी सेमी ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। यानी देश में एक सेमीकंडक्टर क्लस्टर जन्म ले रहा है और आज यहां चिप्स की पैकेजिंग हो रही है। कल यहां विशेष कंपनियां आएगी, केमिकल्स का उत्पादन होगा, नई टेस्टिंग लैब बनेगी, मशीनों की सर्विस करने वाले उद्योग आएंगे, डिजाइन सेंटर्स खुलेंगे और फिर यहां से नए स्टार्टअप भी निकलेंगे। यही क्लस्टर की ताकत होती है। एक उद्योग सैकड़ों उद्योगों को जन्म देता है। सैकड़ों उद्योग
लाखों रोजगार पैदा करते हैं और ये लाखों रोजगार पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदल देते हैं। और ये सिर्फ साणंद में ही नहीं हो रहा, देश के अनेक राज्यों में भी सेमीकंडक्टर के क्लस्टर बन रहे हैं। साथियों, आज भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर के इस उभार से सभी उत्साहित हैं। देश दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अक्सर लोग इसको आइसोलेशन में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार अचानक नहीं हुआ है। ये पिछले एक दशक में भारत में आई इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का नेक्स्ट स्टेप है। साथियों, हमने शुरुआत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से की। एक समय था जब भारत अपनी जरूरत से भी अधिकांश स्मार्टफोन, ज्यादातर स्मार्टफोन हम विदेश से ही मंगाते थे। और आज भारत में मोबाइल फोन प्रोडक्शन पहले के मुकाबले 33 गुना ज्यादा हुआ है। आज भारत, यानी जो 2014 के पहले मोबाइल फोन बाहर से लाता था, आपने मुझे जब गुजरात से दिल्ली भेजा तो भारत मोबाइल दुनिया में भेज रहा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर भी है। साथियों, बीते वर्षों में हमने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत किया है। आज भारत का टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 2014 के मुकाबले लगभग 7 गुना बढ़ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग 11 गुना बढ़ चुका है। साथियों, हमारा प्रयास सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट में आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास कंपोनेंट्स में भी आत्मनिर्भरता की तरफ है। और इसलिए अब भारत का अगला कदम उठ रहा है। हम केवल मोबाइल नहीं बनाएंगे, हम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाएंगे, हम उन चिप्स का निर्माण भी करेंगे जिनसे इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया चलती है। और यही हमारी रणनीति है। पहले प्रोडक्ट, फिर कंपोनेंट्स और अब सेमीकंडक्टर, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन भारत में होगी। यह विकसित भारत का रोड मैप है। यही मेक इन इंडिया का अगला चरण है। साथियों, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल मिनरल्स और हाईटेक मटेरियल्स में आत्मनिर्भरता। और अभी सुभैया जी बीच बीच में गुजराती भी बोलते थे। उन्होंने गुजराती कहावत सुनाई, निशान चूक माप पर नहीं माप नीचू निशान। और इसलिए मेरा भी वही स्वभाव है। मैं लक्ष्य छोटे नहीं रखता, मैं सोच छोटी नहीं रखता।
अगर स्टैच्यू भी बनाता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा बना के रख देता हूं। और जैसा सुबह जी ने कहा, सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। काम बोले थे। ये जो प्रोग्रेस दिख रही है, ये जो अचीवमेंट दिख रहे हैं, इससे जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करना ये भी हमारा लक्ष्य है। आज भारत इसी दिशा में व्यापक प्रसार कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही विकसित हो और भारत चिप तो बनाएगा ही, भारत का युवा मेड इन इंडिया चिप पर एआई, रोबोटिक्स और नेक्स्ट जेन टेक क्रांति को भी गति देगा। मुझे भारत की युवा शक्ति पर, भारत की युवा टैलेंट पर अटूट विश्वास है। मेरे देश की युवा शक्ति और उनके सामर्थ्य पर मेरा पूरा भरोसा है। साथियों, मैं इस अवसर पर देश की युवा शक्ति से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जब भी दुनिया में कोई नई औद्योगिक क्रांति आती है तो सबसे अधिक अवसर युवाओं के लिए पैदा होते हैं। एक समय आईटी क्रांति आई तो उसमें लाखों भारतीय युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका मिला। फिर स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का दौर आया, उससे भी लाखों युवाओं को नए अवसर मिले। ये जो सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन और एआई रिवॉल्यूशन का दौर है, ये भी अनगिनत नए अवसर लेकर के आ रहा है। रिसर्च और डिजाइन से लेकर स्टार्टअप इनोवेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक अनेक अवसर है। साथियों, जरूरत नई स्किल की है, नए आइडियाज की है। अब मायने ये रखता है कि आपके पास नया आइडिया है या नहीं, आपके पास कुछ नया सीखने, नया करने का जज्बा है या नहीं। मैं आज जिन बेटियों से मिला, झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, कोई केरल से, कोई छत्तीसगढ़ से और जय जोहार से ही हमारी बात शुरू हुई, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूं तो मुझे पता है। उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहां कंडक्ट कर रही थी, गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर। साथियों, आने वाले समय में एआई आपके सामने नई स्किल्स, नई एक्सपर्टाइज का पूरा संसार खोल देने वाली है। इसलिए भारत के युवाओं को अभी अवसर गंवाना नहीं है। और मैं नौजवानों आपको कहता हूं, आइडिया आपका, साथ मेरा। साथियों, ये फैसिलिटी, ये प्रोजेक्ट भी इस बात का प्रमाण है कि भारत के युवा कैसे नई संभावनाओं से जुड़ रहे हैं। यहां काम करने वाली बहनें से बेटियां, जैसा मैंने कहा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सारा ट्राइबल बेल्ट से आई हुई बेटियां हैं।
उन बेटियों ने जब मुझे फैक्ट्री दिखाई और बड़े जोश और उत्साह के साथ एक एक चीज के बारे में विस्तार से मुझे बता रही थी। साधारण परिवार, साधारण स्कूल, आईटीआई की पढ़ाई। हमारे यहां तो आईटीआई में कोई दाखिल होता है तो मां बाप किसी को बताते नहीं है कि आईटीआई पढ़ता है, शर्म आती है। अब वक्त बदल चुका है, आईटीआई वालों का जमाना है। पढ़ाई भले आईटीआई में हुई हो, इनके सपने असाधारण है। इनमें से कई बेटियों के परिवार में कभी किसी ने पासपोर्ट तक नहीं बनवाया था, देखा तक नहीं था। इनमें से कई बेटियों ने तो दिल्ली मुंबई तक नहीं देखा था। विदेश जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन वही बेटियां ट्रेनिंग के लिए मलेशिया गई, दुनिया की सबसे आधुनिक सेमीकंडक्टर तकनीक सीखी और आज ये सभी मेड इन इंडिया चिप निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे याद है जब सुबैया जी ने मुझे एक बार दिल्ली में एक वीडियो दिखाया था, 3 मिनट का वीडियो था, इन बेटियों के जीवन पर था। वो जंगलों में कैसे रहती थी, खटिया पर बैठ के कैसे पढ़ती थी और फिर वो एयरपोर्ट पर अपना चेकअप के लिए खड़ी हुई है और जा रही है वो क्लियरेंस करके मलेशिया के लिए। तो मैंने तुरंत उनको कहा था कि मैं हो सके उतना जल्दी जब भी गुजरात आऊंगा तो गवर्नर हाउस में इन बेटियों को बुलाकर इनसे बातचीत करूंगा। वो तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन आज मुझे वो अवसर मिल गया। थैंक यू सुबैया जी। मैं इन सभी बेटियों को, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि भारत को विकसित बनाने के लिए हम कितने अधीर हैं। इस वर्ष की शुरुआत में मैंने कहा था कि वर्ष 2026 में 4 सेमीकंडक्टर फैसिलिटी शुरू हो जाएगी और आज मेरे मंत्री ने कह दिया नहीं 4 नहीं 5 हो जाएगी। और मुझे खुशी है कि 6 महीने में 3 प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। यानी आज का भारत बड़े लक्ष्य भी रखता है और उन्हें समय पर पूरा भी करता है। भारत यही भरोसा पूरी दुनिया को, हर इन्वेस्टर को भी देता है। हमारी नीतियों में स्थिरता है, हमारे निर्णयों में स्पष्टता है और हमारे एग्जीक्यूशन में गति है। मैं सीजी सेमी के मैनेजमेंट को, अन्य इन्वेस्टर्स को भी आश्वस्त करता हूं, रिफॉर्म्स का जो रास्ता भारत ने चुना है, जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर हम चल पड़े हैं, वो और गति पकड़ेगा। आज का भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इसी कमिटमेंट से ही 140 करोड़ भारतवासी 2047 तक भारत को विकसित बनाकर रहेंगे। और आज 18-20 साल के नौजवान है ना, ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सकें। इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के लिए। साथियों, हम विकास के राह पर चल पड़े हैं। हम प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और इसमें सेमीकंडक्टर का एक क्षेत्र एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर के नया विश्वास पैदा कर रहा है। मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप भी
ऊंचे लक्ष्य लेकर के चले, निशान चूक होगा तो देखा जाएगा। लेकिन हम चल पड़े। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।